हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. This order will dispose of FAO number 10368 of 2014 and 2407 of 2016 as these have emerged out of the same proceedings pertaining to grant of compensation on account of death of Poonam in a motor vehicular accident that allegedly took place on 28/1/2013 full stop para FAO number 10368 of 2014 has been filed by Nachatro Devi, claimant seeking enhancement of compensation on account of death of Poonam, whereas the other appeal has been preferred by registered owner of the vehicle against order dated 25/2/2016 passed by the Motor Accidents Claims Tribunal, Ambala, whereby application under order 9th Rule 13 read with section 151 CPC for setting aside ex parte award dated 6/8/2014 has been dismissed full stop para, as the question of enhancement of compensation can be considered by the court only if the appeal preferred by the registered owner is not allowed. Thus, the appeal preferred by the registered owner would be decided first. Full stop para. The sole submission made by counsel for the appellant is that as the appellant was not personally served in the claim proceedings, nor he ever refused to accept any notice sent by the court, the ex parte proceedings against the appellant as well as ex parte award are liable to be set aside, and the matter may be remitted to the tribunal for decision of the claim application afresh after providing an opportunity of being heard to the appellant. Full stop para. Counsel for the claimant slash respondent, on the contrary, would argue that the appellant was aware of proceedings initiated by the police in view of report under section 210 CRPC. Therefore, the appellant was aware of pendency of the claim proceedings and he voluntarily opted not to contest the claim. Therefore, order impugned may be affirmed. Full stop para. I have heard counsel for the parties perused the paper book, particularly the order impugned. Full stop para. The tribunal in para 4 of the impugned order has assigned the reasons to conclude that it cannot be said that either summons were not duly served upon the applicant or he was prevented by any sufficient cause from appearing in the case when called for hearing. Full stop. The court has noticed that the appellant refused to accept registered envelope containing summons and he was proceeded against ex parte wide order dated 16/4/2014. Full stop. Counsel for the respondent, in response to a query, would fairly inform that no witness was examined by the respondent to prove the report of refusal on registered envelope
that has been taken into consideration by the tribunal for initiating ex parte proceedings wide order dated 16/4/2014 and dismissing the application for setting ex parte award full stop. In absence of evidence by the respondent that the registered envelope containing summons was actually tendered to the appellant and he refused to accept the same, it is difficult to affirm findings that either the appellant was duly served in the case or he intentionally kept himself away from the proceedings at the risk and cost of an award being made for payment of compensation full stop over. तो दोस्तों ये 90 की स्पीड में हो गया है, ठीक। नाम इसमें आया है, क्या आया है, पूनम। पूनम के लिए पूरा ही बनेगा, पी थ्रो द लाइन पी एन और एम। अगर बन जाए इजीली तो एन का हुक लगाकर एम बना सकते हैं, लेकिन बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो पूरा ही बनाइएगा इसको। और इसके अलावा नक्षत्रो देवी, नक्षत्रो भी या तो एच की डबलिंग कर दीजिए, एन बना के एच की डबलिंग कर दीजिए ओ की वॉवल आफ्टर में, ठीक है। मतलब नीचे एच की डबलिंग में नीचे वाले चे के आफ्टर में ओ की वॉवल। नक्षत्रो अगर ऐसे समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना एन चे और टी आर बना के ओ की वॉवल लगाइए। नक्षत्रो देवी, देवी के लिए केवल डी में वी का हुक लगा दीजिए, बस हो गया है। अगर पेन की वॉवल लगाए हैं मतलब आफ्टर में सेकंड प्लेस पे वॉवल लगी है देव में, तो वो देव हो गया, मतलब डेव, डी और वी का हुक में ऑन द लाइन। अगर पेन की वॉवल आफ्टर में लगी है सेकंड प्लेस में तो देव हो गया, अगर ई की वॉवल लगा दीजिए तो देवी हो जाएगा, ठीक। डबल डैश कर दीजिएगा। अंबाला बनेगा एम बी का स्ट्रोक और अपवर्ड एल, ठीक है, और ज़रूरी वॉवल्स बिफोर आफ्टर में। तो चलिए ये हो गया है और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन डिक्टेशन का। चलिए कमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं। वैसे कमेंट्स के आंसर तो हमने सबके दे दिए, कुछ आंसर्स नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि देते ज़रूर है, बस नज़रों में आ जाए। तो स्किल टेस्ट तो बाद में होगा, अभी सीपीटी होगा सिर्फ, ठीक है, जो 18-19 को है। सो मच, थैंक यू सो मच। और एक्सेल में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वो वर्जन क्या, इसका क्या मतलब है, कौन सा वर्जन है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, ये क्या है, ठीक से क्लैरिफाई कीजिएगा। और अच्छा एक चीज़ है, जो फिगर आती है उसे न्यूमेरिकल में डालना है या इंग्लिश में टाइप करना है। देखिए ये एक सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि पंजाब हरियाणा के मैटर में असल में होता क्या है ना कि फाइनेंशियल मैटर ज़्यादा आता है। मतलब अब जैसे जजमेंट हम देखते हैं तो उसमें फाइनेंशियल मैटर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी फाइनेंशियल मैटर आया, उसमें लिखा है 43,286, ठीक है, इन ब्रैकेट 42,386, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में जो आता है वो उसमें होता है, वर्ड्स में होता है। लेकिन नॉर्मली हम हमेशा न्यूमेरिकल में ही उसको लिखते हैं, पैसों को। जो भी पैसा अगर आता है उसको न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड मोड होता है न्यूमेरिकल में लिखना, ठीक है। अगर उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है तो वो ब्रैकेट में होता है, तो वो भी डिक्टेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रुपए पैसों की कभी बात होती है तो उसको न्यूमेरिकल में ही लिखिए, उसको वर्ड्स में नहीं लिखा जाता है, ठीक। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई होगी। अब जैसे कुछ मैटर में आता है, जैसे कोई नंबर है, टू बेंच डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है, जजमेंट मतलब टू बेंच डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, डबल बेंच होती है ना, जैसे उसको कहीं कहीं 2 बेंच कर देते हैं या 3 जजेस बेंच कर देते हैं। उस केस में आपको वर्ड्स में लिखना है नंबर, उसमें नंबर मत लिखिए, मतलब उसमें स्टैंडर्ड होता है वर्ड। इसलिए क्योंकि आप वो किसी न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी बेंच की स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है, ठीक है। उस केस में रुपए पैसे और नंबरिंग जहाँ पे आती है वहाँ न्यूमेरिकल का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें परेशान ज़्यादा मत होइएगा।
और MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए आ तो कुछ भी सकता है, एक्सेल केवल मेंशन किया है एक्सेल स्प्रेडशीट, तो 90% एक्सेल स्प्रेडशीट तो आनी है, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप सबसे कि MS वर्ड भी तैयार करके जाइए। अब इतनी दूर एग्जाम देने जाइएगा तो फिर आधा अधूरा तैयार करके जाइएगा क्या? पूरा ज्ञान लेके जाइए, कुछ भी पूछ लेगा कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है? MS वर्ड में कोई बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा लगना है। 15 10 10 15 15 मिनट डेली एक्सेल कर रहे हैं तो 10 मिनट वर्ड में भी टाइम दे दीजिए। बस आना एक्सेल ही है, लेकिन वर्ड भी तैयार कर लो, घट नहीं जाएगा कोई भी, ठीक है? यू वेलकम। और 4 मिस्टेक आई हैं सुमित जी की, आपको बधाई हो। इसी पोजीशन पे लगे रहिए, बहुत मुश्किल से पोजीशन बनानी पड़ती है, मतलब बनती है। और देखिए स्टेनो जो टाइप की जाएगी वो स्किल टेस्ट बाद में होगा, जिसमें 20 मिनट मिलेंगे। चंडीगढ़ हरियाणा बेल्ट में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता है टाइपिंग करने के लिए, मतलब स्किल टेस्ट में, ठीक है? तो इसलिए याद रख लीजिए 20 मिनट्स। और फिगर्स का तो हमने आपको बता दिया। PDF देखिए, सारी PDFें जितनी भी होती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देते हैं और आप उसमें देख सकते हैं। इसमें हमने अगर पूरा मैटर नहीं वो किया है मतलब फ़ोटो में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि PDF नहीं है, ठीक है? इसकी PDF हम डाल देते हैं, ठीक है? 6.5 मिस्टेक्स आई हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी में अपने आप को बना के चलिए। अच्छा हाँ, एक PDF में मिस्टेक हो गई थी, क्या कहते हैं, एक्सेल शीट के वहाँ 30,000 था और नीचे आंसर जो हमने बना के भेजा था वो 33,000 है। तो आप उसको 30,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको आप कर लीजिएगा, वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इंसान ही है, ठीक है? तो चलिए फिर, पूरी डिक्टेशन इसीलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि PDF रहता है और हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक? तो चलिए और हाँ एक चीज़ और, जो एक्सेल की हमने CPT की वीडियो बना के भेजी है सेकंड टाइम, एक्सेल शीट सेकंड, वो थोड़ा बोरिंग हो गई होगी क्योंकि वो मोबाइल पे हमने देखिए बनाई थी, लैपटॉप में या सिस्टम पे नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो कुछ लोग बुरा भी मान रहे होंगे, पर अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, सॉरी। लेकिन हाँ वो सिर्फ आइडिया देने के लिए थी, और आइडिया उससे अगर आप उसको देखेंगे, भले वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझाना चाहते हैं वो समझ लीजिएगा, वो ज़रूरी है। मैटर ये नहीं करता कि वीडियो कैसी बनी है, मैटर ये करता है कि आपको जो नॉलेज मिल रही है वो क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने वाले तो हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि जो नॉलेज है वो आपको हम कन्वे कर सकें अपनी, ठीक है? तो चलिए फिर अगले डिक्टेशन मिलेंगे। रिव्यूज़ दीजिएगा, अच्छे बुरे जो भी हो, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और बता दीजिएगा क्या कमियाँ हैं, उसको दूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।